our top focus on the news wheel because assembly elections in Bihar, and we're seeing robust voter turnout. Some saying even better than phase one, which already was a historic precedent. After 73 years, we saw 64% voter turnout in the phase one of the Bihar Assembly elections. 122 seats up for grabs today in phase two of the Bihar Assembly polls. Let's break that down for you. Now, voting for the second phase of Bihar's elections is currently underway. In 122 of the state's 243 constituencies, the overall poll figure at 11 a.m. was 31.38%, much higher than the 11 a.m. polling percentage of 27.65% for phase one. Visuals on your screens. Some important seats that are up for grabs, of course, include Gaya, Jamui, Aurangabad. Supaul went to vote today in the second phase of the Bihar Assembly elections. Polling began at about 7 a.m. across all the 122 constituencies in 20 districts. It's been going on smoothly so far, covering nearly 3.7 crore electors. How many will actually step out? Manoj Jha of the RJD already coming out and saying, well, the wave of change is quite visible. And what we saw in the first phase is now turning into a big movement of sorts in the second phase of this election. Now, interestingly, the second phase of the Bihar Assembly elections will decide the fate of 12 ministers from Chief Minister Nitish Kumar's cabinet. That's the important aspect here. The JDU leaders in the fray include Vijendra Yadav from Supaul, Lacy Singh from Damdama, Jayant Kushwaha, the JDU leaders from Amarpur, Sumit Singh from Chakai, Mohammad Jama Khan from Chainpur, Sheila Mandal from Phul Paras, and BJP ministers contesting in the second phase of the assembly elections in Bihar are Prem Kumar from Gaya, Renu Devi from Betia, Vijay Kumar Mandal from Sikati, Nitish Mishra from Janjarpur, Neeraj Babu from Chhatapur, and Krishna Nandan Paswan from Harsiddhi. And needless to say, other key constituencies, because the entire Mithlanchal area falls into this. The Sasaram, Imamganj, Mohania, Bihpur, Gopalpur, Pirpenti, Bhagalpur, Sultanganj and Nathnagar. The first phase of polling was held on the 6th of November. The final phase taking place today. Now, it's a tightly contested battle between the BJP, JDU-led National Democratic Alliance and the RJD Congress-led Mahagathbandhan. Campaigning for this phase was extremely high-paced. We were earlier showing you those numbers. As leaders from both the alliances, the MGB and the NDA, including Union Home Minister Amit Shah, Rahul Gandhi, Tejashwi Yadav, UP Chief Minister Yogi Adityanath, holding multiple rallies, road shows and public meetings across Bihar, pulling out all stops to woo the voters. It's NDA versus the Mahagathbandhan face-off. We're bringing you the latest details. And one of the areas in focus is Simanchal, with its 24 seats across Purnia, Araria, Kishanganj and Katihar, holding huge sway, major share of Bihar's Muslim voters, and it's where the Muslim Yadav consolidation can end up deciding fortunes, crucial for the RJD alliance, whilst the BJP and allies push hard to break that particular hold. The importance of Simanchal and the seats. As of 11 a.m., Kishanganj has reported the highest turnout at 34.74%, whilst Madhubani recorded the lowest so far, but the overall number is still better than phase one. The phase two battle for Bihar, 122 constituencies across 20 districts. It's a crowded field. You've got about 1,302 candidates, 3.7 crore electors, 136 women, part of that 1,302 candidate. Around 4 crore voters are going to be deciding the fight altogether as they head to the polling booths. The first phase of polling was on the 6th of November, saw a voter turnout of nearly 65%. Let's listen in to some reactions that are coming across, people that have cast their vote. What are they feeling? What are they thinking? हम चाहते हैं
पूर्णिया, सीमांचल, कोसी और बिहार का विकास, भ्रष्टाचार से मुक्त बिहार, दलाली, इंस्पेक्टर राज, महागुंडा राज, माफियागिरी और धन पशुओं से मुक्ति मिले और सिर्फ लोग अपनी जिंदगी के लिए जिए। लोगों से मेरा अपील है और दिल से अपील है कि जिस प्रकार से आप लोग 6/11 को वोट किया है उससे ज़्यादा परसेंटेज में वोट कीजिए और वोट एनडीए के पक्ष में कीजिए, क्योंकि यहाँ डबल इंजन की सरकार चल रही है। नरेंद्र मोदी जी का पूर्वोदय का कल्पना है, जिसमें बिहार भी एक स्टेट आता है और यहाँ जो भी अलॉटमेंट होना है उससे चौगुना यहाँ अलॉटमेंट मिल रहा है। अगर कहीं कोई घटना होती है तो 48 घंटे में उसको, चाहे पक्ष का रहे चाहे विपक्ष का रहे, कोई किसी को नहीं यहाँ फंसाया जाता है और न बचाया जाता है। ये सिद्धांत पर नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, इसलिए इससे अच्छा सरकार नहीं हो सकती है। हम अपना 46 वर्ष की तजुर्बा पेश कर रहे हैं और जनता से अपील करते हैं कि खूब वोट दीजिए और एनडीए के पक्ष में दीजिए। बिहार के लोगों से अपील करेंगे कि पिछले चरण में जो रिकॉर्ड मतदान हुआ है उसको आज ब्रेक कीजिए, बिहार में बदलाव के लिए वोट कीजिए, अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए वोट कीजिए। जैसे पहले चरण में लोगों ने वोट किया है उससे भी ज्यादा बढ़ चढ़ के वोट कीजिए, ताकि 14 तारीख को बिहार में एक नई व्यवस्था बने, एक ऐसी व्यवस्था बने जिसमें आपके बच्चों के लिए पढ़ाई हो, आपके बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार से पलायन बंद हो, भ्रष्टाचार खत्म हो। ये आपका मौका है। आज अगर आप गलती कर गए, आज आप चूके, तो अगले 5 साल जिस व्यवस्था से आप त्रस्त हैं, जिस भ्रष्टाचार से आप परेशान हैं, जिस सरकार की जिन नाकामियों को आप गिनाते रहते हैं, रोज चर्चा करते हैं, उन्हीं नाकामियों के साथ आपको अगले 5 साल बिताने पड़ेंगे। देखिए, मैंने वोट कर दिया है और सबसे अपील है कि सब लोग वोट करें। हमने जलपान नहीं किया, पहले मतदान किया है, अभी जाके फिर जलपान करेंगे। बिहार में विकास के मुद्दे पर सब पूरा बिहार एकजुट है और हमें पूरी उम्मीद है कि विकास रुकेगा नहीं, तेजी से विकास आगे बढ़ेगा और विकास की जो धारा बही है वो जनता रुकने नहीं देगी। वोट प्रतिशत जितना बढ़ता है समझिए एनडीए गठबंधन का वोट है। पिछले राउंड में जो हुआ था 6 नवंबर को, उसमें बहुत अच्छा संख्या में वोटर निकल के वोट दिया है, प्रतिशत वोट बहुत अच्छा बढ़ा था। 100% एनडीए गठबंधन, डबल इंजन की सरकार, निष्ठावान सरकार, कर्मशील सरकार स्थापित होने जा रही है। आपने वोट दिया, लोगों से क्या अपील करेंगे? हम सब लोगों से आग्रह करेंगे कि अपने बच्चे का भविष्य के लिए, अपने प्रदेश का भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए अच्छा माहौल में जो सरकार चलती हो, सबकी कल्याण करता हो, एनडीए ही सरकार है। अब सभी लोगों से नर्म निवेदन है कि अपना अपना मत एनडीए के पक्ष में दें। देखिए, बिहार में दूसरे चरण का मतदान आज हो रहा है। जिस तरह से प्रथम चरण के मतदान में बिहार की जनता जनार्दन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, मतदान किया और वोट का प्रतिशत रिकॉर्ड तोड़ बढ़ाया। दूसरे चरण में भी जिस तरह से जनता का उत्साह देखा जा रहा है, जो बदलाव के लिए, बिहार के भविष्य को बनाने के लिए वोट करने निकले हैं, उनको हम सैल्यूट करते हैं। In the first phase, there has been bumper voting of around 65%, and in the second phase also there is a lot of excitement which could be seen on ground, and all the alliance, whether it is the NDA or the Mahagathbandhan, are hoping that this time around in the second phase there would be bumper voting. Let me get the pulse on ground, what the people of Gaya thinks about. सर, आपसे पूछूंगा कि क्या मुद्दे हैं इस बार के चुनाव के आपके हिसाब से? नहीं, मोदी जी तो बहुत अच्छे हैं। मोदी जी के चलते हम लोग वोट दे रहे हैं। उन्हीं को विचारधारा बहुत अच्छे लगते हैं हमको, इसीलिए वोटिंग करने आए। उन्हीं को हाथ को मजबूत कर रहे हैं हम लोग। आप क्या कहेंगे सर, मुद्दे क्या है इस बार के? देश विकास हो ही रहा है सर। मोदी जी भी अच्छा सब खाता में दे रहे हैं, पेंशन दे ही रहे हैं, नीतीश बाबू भी सब चीज दे ही रहे हैं, राशन उसन सब चालू है, जीविका दीदी के पैसे भी आ रहे हैं। हाँ, सब आ रहा है, इससे बढ़िया कौन हो सकता है? आप क्या कहेंगे भैया, क्या मुद्दे हैं इस बार के चुनाव? इस मुद्दे सर इसी है कि हम लोग तो
थोड़ा सा काम उम में दिक्कत होता है, बाकी सब चीज़ अच्छा है, डेवलप भी हो रहा है धीरे धीरे, सारा चीज़ बढ़िया है। तो आपको लगता है अगर यहाँ ही यही काम मिल जाए तो बाहर के राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा? नहीं, ये तो है। और भी सब बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर द्वार छोड़ते जाते हैं, फिर आने में परेशानी होता है। तो यहाँ कुछ बन जाए ऐसा फैक्ट्री जिससे काम धाम सारा चीज़ यहाँ ही मिल जाए, तो इंसान परेशान भी नहीं होगा और अपने फैमिली से दूर भी नहीं जाएगा। तकलीफ होती है मतलब फैमिली को छोड़ के इतना दूर जाने के लिए काम? बिल्कुल। सर आप अब क्या कहेंगे, क्या मुद्दे हैं इस बार के चुनाव के? बस मुद्दा मोदी जी को जानते हैं, बाकी कोई मुद्दा नहीं। अच्छा, कोई मुद्दा नहीं, विकास हो रहा है? विकास हो रहा है। सर आप क्या कहेंगे? हमारा मुद्दा रहेगा रोजगार, स्वरोजगार और शिक्षा। इसके अलावा जीडीपी में थोड़ा ग्रोथ होना चाहिए, क्योंकि इस समय बहुत ही मार्केट का जो स्थिति है बहुत ही डाउन चल रहा है, तो उसमें थोड़ा ग्रोथ चाहिए। बस इसके अलावा तो बाकी सब आप लोग जानते हैं। और क्या कहेंगे सर, जो जिस हिसाब से विकास होना चाहिए उस हिसाब से हो रहा है राज्य में? जी, राज्य का तो ठीक है, लेकिन गया का स्थिति अभी सही नहीं है। गया में जिस तरह से होना चाहिए, एक ही सरकार को हम लोग 7 बार यानी 35 साल से हम एक ही सरकार चुन रहे हैं गया से, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार ना बदलें, लेकिन चेहरा बदलना चाहिए, जिनका सोच थोड़ा अलग हो और आज के जनरेशन को लेकर चले। आप क्या कहोगे भैया, क्या मुद्दे हैं आपके? बीजेपी। अरे वो मुद्दे आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्या कहेंगे सर, मुद्दे क्या है? मोदी जी ठीक आदमी है, विकास कर रहे हैं, वहाँ भी होना चाहिए गया में विकास। This is the pulse that we are picking from ground. We have spoken with both the male voters as well as the female voters, and they have put across the issues, the problems that they are facing, and what can be done better in the state of Bihar.